Hello and welcome to the channel. Today we will start the question paper of All India Sainik School Entrance Examination 2019 Set C. So here in this video we are going to understand few questions of mathematics. Alright, in this channel we are going to understand what kind of a question paper we will get for RIMC, RMS, Sainik School and all such competitions. Okay, so let's get started with the first question of the question paper. So here it is. If the square of a number is added to the square of 28. So let us say we have a number x. Alright. So we have a number x and the square of this number. So square means this x square. Then it is added to 28 square, which is equals to what? The result is 1808. Okay, and they're asking what is the number, that means what is the value of x. All right, so now see, just keep x square as it is and we have to square this 28. That means we have to multiply 28 into 28. Okay, so 28 into 28 is how much? It is 784. Okay, is equals to 1808, and then if you subtract, it will become 1808 minus 784. And if you subtract this number, you will get how much? 1024. Okay. And 1024 का अगर हम square root निकालेंगे बेटा, what will be the answer? It will be, see, how do we solve it? 1024 divided by 2. We'll do the prime factorization divided by 2. 2 5s are 10. 2 1s are 2. 2 2s are 4. So we will do the prime factorization like this. Okay. 2 2s are 4. 2 5s are 10. 2 6 are 12. Then 2 1s are 2. 2 2s are 4. 2 8s are 16. Then we'll start with 2 again. 2 6 are 12. 2 4s are 8. Then 2 2 3s are 6. 2 2s are 4. Again we'll do with 2 only. Okay, 2 1s are 2, 6 are 12, 2 8s are 16, then 2 4s are, then 2 and then 2 and 2 and 1. Now we'll make pair 1, 2, 3, 4 and 5. So square root निकालने के we'll make pair and then how much? 2, 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32. So this is the square of 32. So the correct answer is option C. अब एग्जाम में तो हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, तो हम लोगों को थोड़ा शॉर्टकट करना पड़ेगा. सो हाउ टू डू विद द शॉर्टकट मेथड. ओके, सी, सिर्फ यूनिट डिजिट देखो बेटा. यूनिट डिजिट हाउ मच? 8. 8 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होता है? 8 8 64. तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 4. सी, 8 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट है 64. दिस इज यूनिट डिजिट. हम सिर्फ यूनिट डिजिट के साथ देख रहे हैं, ठीक है. अब 4 आ गया हमारे पास. इसका यूनिट डिजिट कितना है? रिजल्टेंट का यूनिट डिजिट इज, ओ सॉरी, so resultant का unit digit is, कहाँ गया? 8. Okay, resultant का unit digit is 8. 8 minus 4 is how much? 4. अब हमें ये चेक करना है कि किसके स्क्वायर में 4 आता है. नाउ चेक विद द ऑप्शन. देखो, यूनिट डिजिट 6 का स्क्वायर में 6 ही आता है. 6 6 36, so 6 आता है. दिस इज नॉट द ऑप्शन. 0 में तो 0 आता है, नॉट एन ऑप्शन. 6 में अगेन 6 विल बी नॉट एन ऑप्शन. यू आर लेफ्ट विथ 32. ठीक है, तो इतने जल्दी भी हो सकता है. और if you don't want to try this unit method, you can go with this method. Okay, chalo, moving on to the next one. If the area of a rectangular garden, so now let's draw a rectangle. Very simple, right? Let's draw a rectangle. Rectangle में क्या होता है? There's this longer side is the length, this shorter side is the breadth. ये बोला ये 5 मीटर है, ठीक है. ये जो एरिया है बेटा, दिस इज द एरिया, राइट. तो ये कितना देर का? दिस एरिया इज 300 स्क्वायर मीटर. मीन्स वी कैन राइट इट एज मीटर स्क्वायर एज वेल. हमें पूछा है लेंथ. सो दिस इज वेरी सिंपल. एरिया क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट. एरिया इज 300, लेंथ इज एल, ब्रेथ इज 5 मीटर. तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड. तो लेंथ कितना हो जाएगा? 300 डिवाइडेड बाई 5. 5 6 30, 0. कितना आंसर आ जाएगा? 60 मीटर. 60 मीटर इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. A man covers a distance of 40 kilometers. He covers first 10 kilometer at 10 kilometer per hour, second 10 kilometer at 20 kilometer per hour, third 10 kilometer at 30 kilometer per hour, and last 10 kilometer in 40 kilometer per hour. What is the average speed? सबसे पहले तो
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन। अब देखो, टोटल डिस्टेंस तो आई नो कि 40 किलोमीटर गया है, बट टोटल टाइम, हाउ मच इज द टोटल टाइम? तो देखो, फर्स्ट 10 किलोमीटर, फर्स्ट 10 किलोमीटर कितना में है? 10 किलोमीटर पर आवर में, 10 किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर गया, और वो ट्रैवल कितना किया उसने? 10 किलोमीटर ही ट्रैवल किया। तो इसका मतलब कितना? 1 घंटा लगा उसको। फर्स्ट के लिए 1 घंटा लगा। सेकेंड 10 किलोमीटर, जो नेक्स्ट 10 किलोमीटर है, देखो 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चला। अब खुद सोचो, अगर मैं 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में 20 किलोमीटर जा रही हूँ, तो फिर हाफ कितने में जाऊंगी? हाफ टाइम में, है ना, अगर मैं सेम स्पीड से चल रही हूँ। तो इसका मतलब कितना? 10 किलोमीटर के लिए कितना लगा होगा? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को मैं लिख सकती हूँ 1/2 आवर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, नेक्स्ट 10 किलोमीटर, देखो 30 किलोमीटर पर आवर बेटा। 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 1 घंटे में, 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ इन 1 आवर आई एम ट्रैवलिंग 30 किलोमीटर। ठीक है, मुझे ट्रैवल करना है 10 किलोमीटर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। सी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको, लेट मी राइट इट हियर। 30 किलोमीटर कितने में जा रही हूँ मैं? 1 आवर में जा रही हूँ। यूनिटरी मेथड, तो 1 किलोमीटर कितने में जाऊंगी बेटा? 1/30 में जाऊंगी। और मुझे कितना ट्रैवल करना है? 10 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा? 1/30 × 10, ऐसे करते हैं यूनिटरी मेथड, तो कितना आ जाएगा? 1/3, 1/3 आवर्स। सेम अगर नेक्स्ट 10 किलोमीटर होगा, तो देखो 40 किलोमीटर पर आवर। सेम अगर तुम यूनिटरी मेथड से निकालोगे, तो इसका 1/3 आया, 30 था, तो इसका कितना आएगा? 1/4 आएगा, है ना। अब टोटल टाइम देखो कितना होगा, टोटल टाइम एंड टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें दे रखा है 40, और टोटल टाइम कितना है? 1 + 1/2 +1/3 +1/4। इसको सॉल्व करना है बेटा, नीचे वाला। अब इसको अगर मैं यहाँ अलग से सॉल्व करूं, देखो, तो 1/2, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, 4 2, इसके नीचे 1/1 कर दूं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 और 2 का 12, तो यहाँ बन जाएगा 12। 1 1 12 = 12, 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12। कितना आ जाएगा बेटा? 6 4 10, 10 13, 13 + 12 25/12। कितना हो जाएगा टाइम? 25/12 आवर्स। तो अगर मैं यहाँ इसको यहाँ लिखूंगी तो कितना बनेगा? 45/25/12 बनेगा, है ना। तो इंटू में चला जाएगा, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया? 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। अब 12 8 ज़ा 96/5, 96/5 कितना होता है? 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 किलोमीटर पर आवर। 19.2 कहाँ पे है ऑप्शन? 19.2 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड, राइट? चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। The average weight of 6 boys gets increased by 5 kg if a boy with a weight 20 kg is replaced by a new boy. मतलब हमारे पास क्या बोला हुआ है? 6 boys were there, 1 2 3 4 5 6 boys were there। अब मैंने इनका एवरेज निकाला। एवरेज क्या होता है? इन सबका सम करके डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, तो वो एवरेज आता है। एवरेज पता है ना, एवरेज और मीन। एवरेज क्या होता है? जो भी हमारे पास टोटल जो सम होगा, ठीक है, सम अपॉन जो भी हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही होता है, यही होता है फॉर्मूला, तो है ना। तो अब देखो, अगर मेरे को क्या बोला है कि पहले मेरे पास क्या थे, अभी देखो हमें नहीं पता कि पहले वाले का सम कितना था, है ना। पहले जो 6 बॉयज थे, उन 6 में से हमारे पास उनका सम कितना था, वी डोंट नो। तो इसको मैं अज्यूम कर लेती हूँ। क्या अज्यूम करूँ? एक्स अज्यूम कर लूँ, ठीक है। अब देखो, हमें बोला है कि अगर जो सम है, मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मतलब 6 बॉयज थे हमारे पास, तो कुछ तो एवरेज आ रहा था, एवरेज को मैंने ए ले लिया, ठीक है। अब क्या बोला है कि जब नया कोई लड़का है, मतलब क्या हुआ कि हमने ना एक लड़के को अपने टीम से निकाला, उसका वेट कितना था? 20 kg था।
और एक नया लड़का, मतलब जो पुराना लड़का था वो 20 kg का था, उसको रिप्लेस किया एक न्यू बॉय से। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर देखो, ये हमारे पास 6 थे, हमने इसको, ये 20 kg वाला था, हमने इसको हटा दिया और एक नया लड़का यहाँ लेके आए। वी डोंट नो इसका वेट, हमें इसी का वेट निकालना, ये न्यू बॉय का वेट है। ठीक है, अब देखो, इसका मतलब मैंने क्या किया, मेरा जो सम था, सम में से 20 kg वाले को हटाया तो -20 करूंगी, और जो नए का वेट होगा, मुझे नहीं पता इस नए का वेट कितना होगा, लेट्स से इस न्यू का वेट होगा n, है ना, लेट्स से इस न्यू का वेट कितना होगा n, डिवाइडेड, टोटल तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक को हटाया एक को वो किया, तो एवरेज बोल रहे हैं इंक्रीज होके कितना हो गया 5, पहले एवरेज ए था अब कितना हो गया 5, है ना। अब देखो, इसको सॉल्व करना है मुझे, इसको, ठीक है, अलग अलग लिख देती हूँ, x/6 -20/6 प्लस n/6 इज इक्वल्स टू a+5 लिख सकती हूँ। अब एक चीज देखो, यहाँ से इधर से x/6 की वैल्यू कितनी है बेटा, a, तो x/6 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, a लिख सकती हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, a माइनस, इसको सॉल्व रहने देते हैं अभी, प्लस n/6 इज इक्वल टू a+5। अब देखो दोनों साइड a है, दोनों प्लस में है तो कट जाएगा, है ना, नंबर को एक साइड कर दो, बाकी को एक साइड कर दो, तो n/6 यही रहने दो, और यहाँ कितना बच जाएगा 5 + 20/6। ना इफ विल टेक एलसीएम, तो 6 यहाँ एलसीएम होगा, 6 5 30 + 20 कितना हो जाएगा 50/6। अब देखो n/6 इज इक्वल टू 50/6, क्या हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 50 kg, राइट, n की वैल्यू इज 50 kg, सो दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड, राइट? ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अ टेबल वॉज परचेज एट ₹1000, मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस मुझे दे रखी है ₹1000, सोल्ड एट 800, मतलब मुझे सेलिंग प्राइस दे रखी है 800, गेन और लॉस परसेंटेज निकालना है। बेटा जब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी दैट मीन्स व्हाट, मैंने ज्यादा में खरीदा कम में बेचा तो मुझे क्या हो गया, लॉस ही होगा ऑब्वियसली, है ना, लॉस हो गया। तो लॉस की वैल्यू कैसे निकलती है, सीपी माइनस एसपी, कितने का लॉस हुआ बताओ, 1000 में से 800 माइनस करेंगे तो कितने का लॉस हुआ, 200 का लॉस हुआ। ठीक है, लॉस परसेंटेज निकालते कैसे हैं बेटा, लॉस रुपीज में जो आएगा अपॉन सीपी इंटू 100, हमारा सेम प्रॉफिट का भी सेम फॉर्मूला होता है, ऊपर प्रॉफिट होता है, नीचे हमेशा सीपी रहेगा, 200 अपॉन 1000 इंटू 100, 3 0 2 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, कितना परसेंट आया, 20%। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Now see, a milkman has two cans of milk containing 75 liters and 45 liters of milk respectively. What will be the measure of largest vessel that can measure the milk of the two cans exactly? हमें बोला है कि हमारे पास एक 75 लीटर का एक 45 लीटर के कैंस है, हमें एक ऐसा कैन लेना है जो कि एग्जैक्टली मेजर करे। एग्जैक्टली मेजर करे का मतलब, लेट्स सपोज मेरे पास एक ग्लास है, मैं उस ग्लास से निकालने बैठूंगी 75 लीटर, तो मैंने सपोज मेरे 10 टाइम्स में 75 आ गया, ठीक है, पर ऐसा ना हो कि मेरा जो 45 है ना, वो कुछ ग्लासेस तो आ रहा है, जैसे 5 ग्लासेस या 4 ग्लासेस आ रहा है और दूसरे में हमारा आधा बच जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाफ बच गया या 1/4 बच गया या कुछ थोड़ा पार्ट बच गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए अगर एक के लिए 10 ग्लासेस आ रहा है तो दूसरे के लिए 5 ग्लासेस आ जाए, 4 ग्लासेस आ जाए, बट एग्जैक्टली एग्जैक्ट ग्लासेस आए। आर यू गेटिंग द पॉइंट, मतलब थोड़ा कम बचना नहीं चाहिए किसी भी उसमें। ठीक है, तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें फैक्टर निकालना होगा, है ना, फैक्टर निकालना होगा। फैक्टर मतलब हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ ऑफ 75 एंड 45। नाउ देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग फाइंडिंग आउट एचसीएफ, राइट, एक तो हमारा डिवीजन भी होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन भी होता है, जो मेथड सही लगता है वो करना शुरू करो। 45 1 सा 45, 0 30, अब क्या करते हैं, ये 45 को यहाँ लेके आते हैं, 31 ज़ा 30, फिर बचेगा 15, जब तक रिमाइंडर बचेगा तब तक हम इसको डिवाइजर वाला डिविडेंड बनता रहेगा, 15 2 ज़ा 30, अब आ गया आंसर खत्म। इसका मतलब हमारा किससे डिवाइड होने पे ये घट गया, 15 से, सो द एचसीएफ विल बी 15। इसका मतलब मेरा 15 लीटर वाला जो कैन होगा उससे ये दोनों मेजर करेंगे। ऐसे भी समझ लो, ऐसे भी देख लो, 75 और 45 किसके टेबल में आता है, इन इनमें से,
इसी के तो टेबल में आता है, बाकी किसी के तो टेबल में दोनों आने चाहिए मतलब, ठीक है। सो ओनली 15 लीटर्स, राइट, तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। What is the least multiple of 23 which when divided by 18, 21 and 24 leaves remainder 7, 10, 13 respect? हमें बोला है, देखो 23 का कोई मल्टीपल, लेट्स सपोज 23 इंटू 5, 23 इंटू 6, 23 इंटू 7, कोई भी, ठीक है। लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल 23 का होना चाहिए, वो जो 18 से डिवाइड होगा। अगर मैं उसको 18 से डिवाइड करूं तो वो 7 रिमाइंडर आए, 21 से करूँ तो 10 रिमाइंडर आए, 24 से करूँ तो 13 रिमाइंडर आए। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। विल टेक द एलसीएम ऑफ 18, 21, 24, एलसीएम ले लेंगे पहले। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम होता है क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। 2 9 जा 18, ये तो जाएगा नहीं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वी कैन टेक 3, 3 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, फिर आ जाएगा 3। फिर तो वैसे भी अभी सब अलग नंबर होगा तो हमें करने की भी जरूरत नहीं है ना। ये पता है ना कि अगर देखो और सारे नंबर अलग अलग से डिवाइड होंगे तो हमें करने की जरूरत नहीं है। विल मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 7 4 जा 28, सो 8 8 जा 64, ये बनेगा 504, ठीक है। अब देखो हमारा जो ये आ रहा है, मतलब हमें जो बोल रहे हैं कि 18 से डिवाइड करोगे तो 7 बचेगा। लेट्स टेक दी difference, 21 minus 10, 24 minus 30, if you will take the difference, देखो 18 minus 7 कितना हुआ 11, ये भी कितना हुआ 11, ये भी कितना हुआ 11, मतलब तुम्हारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो अगर कोई ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, अगर कोई नंबर ऐसे बोला है 23 का लीस्ट मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे 504, क्योंकि इनसे डिवाइड कर रहे हैं ना हम, इनसे डिवाइड करेंगे तो 504 तो नहीं होगा वो नंबर, 504 इंटू समथिंग होगा, है ना। तो मैंने लिख दिया के है वो नंबर, माइनस, देखो क्योंकि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा था इसीलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और वो किसका मल्टीपल होना चाहिए 23, मल्टीपल ऑफ 23, मल्टीपल ऑफ 23। इसका मतलब जो भी के की वैल्यू होगी, के की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो वो 23 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, बस हमें ये निकालना है। क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है, ऐसी वैल्यू की जो मैं यहाँ पुट करूँ तो वो 23 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल के मैंने 1 लिया, तो क्या बनेगा 504 इंटू 1 मतलब 504 माइनस 11, तो ये बनेगा 3, 10 माइनस 1 हो गया 9, 593, 593 23 से डिवाइड नहीं होता, प्रॉपर डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बचेगा, तो दिस इज नॉट द आंसर, ठीक है। ऐसे करके हम लोग चेक करते रहेंगे 1 से 2 से 3 से 4 से, हमें ऐसा करना पड़ेगा। अगर मैं के की वैल्यू 6 पुट करती हूँ बेटा, 504 इंटू 6 माइनस 11, ठीक है, ये बनेगा 6 4 ज़ा 24 एंड 6 5 ज़ा 30, माइनस 11 करूंगी तो कितना बनेगा 3 1 3 0 1 3। अब तुम इसको 23 से डिवाइड करके देखना, यू विल गेट द आंसर, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सी वंस वी रीच हियर, हमें बस ये ढूंढना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे में आ रहा है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Four clocks rings at the time interval 6 seconds, 8 seconds, 12 seconds, and 18 seconds respectively. If they ring together at 12 a.m., then how many times will they ring together within the time span of 6 minutes? चार क्लॉक्स हैं जो एक 6 सेकेंड में बजती है, हर 6 सेकेंड्स में बजती, दूसरी हर 8 सेकेंड में बजती, तीसरी हर 12 सेकेंड्स में बजती, और जो फोर्थ वाली है वो हर 18 सेकेंड्स में बजती है, ठीक है। वो एक बार ही 12 AM के उस पे तीनों ने चारों ने एक साथ रिंग रिंग किया, ठीक है। अब हमें ये बोला है कि 6 मिनट के अंदर अंदर वो चारों के चारों कितनी बार कॉमन में रिंग करेंगी, समझ में आया। 6 मिनट, फर्स्ट वी नीड टू चेक कि ये चारों जो क्लॉक है, ठीक है, वो कितने मिनट या कितने सेकंड में वो दोबारा रिंग करेगी। पहले हम ये तो देखें कि 1 मिनट में कर रही है नहीं कर रही है, तो कितने मिनट में वो दोबारा एक साथ रिंग करेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसके लिए विल फाइंड आउट व्हाट, क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 6 8 12
एंड 18। ओके, 6, 8, 12 एंड 18। तो निकालते हैं 6, 8, 12, 18। 2 से करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, फिर से 2, 3 एज इट इज, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 9, देन 3, 3 1 ज़ा 3, 2 1 3। अब तो दोनों अलग अलग से जाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। कितना बनेगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72। 72 सेकेंड में ये दोबारा क्या करेंगे, रिंग करेंगे। हमें बोला कितने मिनट में पूछा है बेटा, 6 मिनट्स में। मतलब हर 72 सेकेंड के बाद ये एक साथ रिंग करेंगे। ठीक है, 6 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 6 इंटू 60, कितने हो गए, 360 सेकेंड्स। 360 सेकेंड देखो, अब 72 सेकेंड में एक बार कर रहे हैं तो 360 सेकेंड्स में कितनी बार करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 72। 36 के टेबल में आता है ना 72, 36 10 ज़ा, 36 2 ज़ा, और ये कितना हो गया, 2 5 ज़ा, मतलब 5 टाइम्स दे विल रिंग विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मिनट्स। कहाँ गया 5 टाइम्स, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। The LCM of two number is 28 times their HCF. LCM is least common multiple, HCF is highest common factor. राइट, हमें क्या बोला है कि जो LCM है वो 28 टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय HCF है। ठीक है, द सम ऑफ द LCM एंड HCF, LCM प्लस HCF कितना है सम, 1740। इफ वन ऑफ द नंबर इज 240, अब जिन नंबर का मैं LCM HCF निकाल रही हूँ उसमें से एक नंबर मेरा 240 दे रखा है, मतलब ए की वैल्यू मुझे 240 दे रखी है, मुझे बोला बी की वैल्यू निकालने के लिए। हमें रिलेशन क्या पता है, रिलेशन हमें रिलेशन पता है, फॉर्मूला इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, ये फॉर्मूला होता है। पर हमें पता तो चले LCM HCF है कितना, ये तो एक दूसरे के टर्म में। अब यहाँ देखो, LCM की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, 28 इंटू HCF रखा, 28 इंटू HCF प्लस HCF इज इक्वल टू 1740। बेटा देखो ये कितना HCF है, 1 HCF है, ये कितना है 28, तो कितना बनेगा, 29 HCF बनेगा, है ना। तो HCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1740 डिवाइडेड बाई 29। तो ये कितना हो जाएगा, 17 डिवाइडेड बाई 29 इज 60। ठीक है, 60 हो गया, HCF की वैल्यू आ गई। LCM कितना आएगा, देखो LCM इज 28 इंटू HCF, मतलब इतना। मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो और यहाँ पुट कर दे, 240 इंटू बी इज इक्वल्स टू 28 इंटू 60, HCF इज 60। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 240। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 6 4 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 6 ज़ा 42, 420। बी मतलब जो सेकेंड नंबर है 420, हाँ ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। Ashu takes 12 days to complete the work. Pranav takes 10 days to complete the same work, and Ashu, Pranav and Ramu takes 5 days to complete it. See, जब भी ये ऐसे वर्क टाइम वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम 1 डे वर्क निकालते हैं। तो 1 डे वर्क ऑफ आशु, आशु का 1 डे वर्क कितना होगा बेटा, अगर 12 डेज में एक काम कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे का कितना होगा, 1/12। सिमिलरली 1 डे वर्क जो हमारा उसका होगा, किसका, प्रणव का, प्रणव का कितना होगा, 1/10 होगा। सेम 1 डे वर्क को हम लेट कर देते हैं, 1 डे वर्क ऑफ रामू कितना हो जाएगा, रामू का 1/x, है ना। और टोटल उन्होंने 5 दिन लिए, तो जो 1 डे वर्क ऑफ ऑल ऑफ देम कितना हो जाएगा, 1/5। इसका मतलब अगर मैं सबके 1 डे को ऐड करूं तो मेरा टोटल आना चाहिए, मतलब 1/12 प्लस 1/10 प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1/5 आना चाहिए, है ना। तो 1/x निकालना है मुझे,
मैं इसको 1/x यहीं रहने दूँ, 1/5 माइनस 1/12 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा बेटा? इफ आई टेक एलसीएम 60, 5 12 जा 60, 12 5 जा 60 है ना, और 10 6 जा 60, 6 5 11 हो गया, कितना आंसर आया? 1/60, तो 1/x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? रेसिप्रोकल करके 60 डेज। इसका मतलब जो रामू ने वर्क किया है वो कितने डेज में कंप्लीट कर सकता है? अकेले 60 डेज में। ठीक है, द सेम वर्क। ओके, ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। A student multiplied 7236 by 65। एक स्टूडेंट ने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई किया, बट उसे मल्टीप्लाई किससे करना था? 7236 को उसको मल्टीप्लाई करना था 56 से, उसने गलती से 65 से किया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। मतलब उसको मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है, ये जो इनकरेक्ट आया उसका कितना ज्यादा है करेक्ट वाले से। तो इन दोनों को क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर माइनस कर देंगे, है ना। उससे ज्यादा बेटर देखो क्या कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, यहाँ लिखो एंड सब्ट्रैक्ट करो। बट अगर मैं देखो इसको, इसका जो प्रोडक्ट आएगा माइनस इसका जो प्रोडक्ट आएगा, माइनस करेंगे तो 7236 को अगर मैं बाहर लिखूं तो अंदर क्या बचेगा? कॉमन ले लूंगी तो क्या बचेगा बेटा? यहाँ 7236 गया तो 65, और यहाँ 7236 गया तो 56, और 65 माइनस 56 कितना होता है? 9, है ना। तो 7236 मल्टीप्लाई बाय 9, तो कितना आ जाएगा? अब देखो इतना बड़ा तुम मल्टीप्लाई नहीं भी करने बैठोगे तो सिर्फ यूनिट डिजिट देखो, 9 6 54, है ना, 9 6 54, लास्ट में 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है बेटा? दिस इज द करेक्ट आंसर। इवन इफ यू मल्टीप्लाई, यू सी 9 6 54, 5, 9 3 27 plus 5 2, then 9 2 18 1, and then 9 7 63, 63 plus 2 65। see, I'm getting the same answer, right? ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन देखो, आई होप यू गाइस नो बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट है ना, और ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, तो पहले वो ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। इसमें इसमें हम क्या कहेंगे? एलसीएम लेंगे, 4 3 12, और क्रॉस में करते हैं बटरफ्लाई मेथड, 3 3 9 माइनस 4। यहाँ तक की बात क्लियर? अभी पहले इसी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइड है तो मल्टीप्लीकेशन में कर दूं और सीधा रेसिप्रोकल कर देती हूँ, तो 12 अपॉन 9 माइनस 4 कितना होता है? 5। ठीक है, अब देखो 6 1 6, 6 2 12, नॉर्मल ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, और ये कितना बनेगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5। अब फिर से हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 1 डिवाइडेड बाय, टेक एलसीएम, कितना हो जाएगा? 30, एलसीएम इज 30, 2 15 सा, ये कितना हो जाएगा? 3 10, 5 6 सा, 6 2 12, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? सी 1 डिवाइडेड, अगेन 1 डिवाइड मतलब हो गया मल्टीप्लाई, उल्टा लिख दो, 30 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 6 7 37, 30 अपॉन 37 इंटू 1 विल बी वॉट? 30 अपॉन 37, राइट? ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, find the perimeter. So it's very simple. Perimeter means sum of all sides. Okay, तो sum of all sides करेंगे तो बेटा देखो, ये 1 है, ये 4 है, ये 4 है, ये इतनी वैल्यूज 0.5 0.5 2.5 2.5, हमें तो सब कुछ दे रखा है ना। जस्ट ऐड 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, दैट्स इट, है ना। ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 0.5 हो गया 1, 2.5 हो गया 5। इफ विल ऐड विल गेट 15 क्या? सेंटीमीटर मीटर,
सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं लगेगा, स्क्वायर किस में लगता है? एरिया में। ठीक है, अंडरस्टूड राइट? चलो नेक्स्ट वन। अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। A square carpet is of 3 meter is laid on the floor. अच्छा देखो, ऐसे समझो, मेरे पास एक फ्लोर है ऐसे। हाँ बहुत ही गंदा बनाया, वेट, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन। हाँ तो ठीक है, इसी में विल सी, let's say this is the rectangular floor and we have a carpet over here. ये कारपेट है, ठीक है, ये कारपेट मैंने बिछाया, although it's very small, but ऐसे समझ लो, this is 3 meter, 3 meter, 3 meter, 3 meter, and the length of this rectangle is that means rectangular floor is 5 meter and the breadth is 4 meter. हमें बोला है कितना एरिया बच जाएगा। बच जाएगा मतलब कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग? ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या करेंगे? जो रिमेनिंग एरिया होगा, एरिया, क्या फॉर्मूला होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर, और द स्क्वायर कारपेट, यू कैन से दैट, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 5 4 20, और ये कितना हो जाएगा? 3 3 9। तो 20 माइनस 9 कितना होता है बेटा? 11 मीटर स्क्वायर। ओके, 11 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वन। Cost of a dozen pens is 180 and the cost of 8 ball pens is 56. The ratio of the cost of a pen to the cost of a ball pen. Very simple. हमें बोला एक डजन पेन की कॉस्ट, मतलब 12 पेन की कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 180। तो एक पेन की कॉस्ट कितनी आएगी बेटा? 180 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 12 वन सा 12, 12 फाइव सा 60, तो कितनी आ गई? ₹15। अब बॉल पेन की देखते हैं। 8 बॉल पेन, 8 बॉल पेन की कॉस्ट, बी पेन लिख रही हूँ मैं, ओ बी पेन, आई हैव टू राइट। एक बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है? 56, सॉरी 8 बॉल पेन की। तो 1 बॉल पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा? 56 डिवाइडेड बाय 8। कितना हो जाएगा? 8 7 सा 56। अब हमें बोला इन दोनों का रेशियो निकालो। किसका रेशियो किससे? कॉस्ट ऑफ ए पेन, मतलब ये जो आया कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन, मतलब नीचे ही आएगा। रेशियो कितना आ जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय 7, मतलब 15:7। ठीक है, 15:7, यहाँ तक समझ में आ गई बात? अंडरस्टूड राइट? ओके, सो आज के लिए हम लोग 15 क्वेश्चंस रखते हैं। विल डू another questions in another video. Alright, till then keep learning, keep growing and keep evolving. Bye bye, thank you so much.